Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9.13. We are associated with capital structure, cost of capital, and specifically we are doing WACC, which is weighted average cost of capital. And as earlier we have described that we are related with capital structure, and the amount which is invested by the proprietor, partners, or shareholders in an organization is considered as capital. There are two parts, one of which is debt financing, the amount which is taken as a loan from outside and invested in the business would be called debt financing. And if amount is directly invested by proprietor, partners, or shareholders, that is called equity financing. और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको रिपीट करते रहा करें. इक्विटी फाइनेंसिंग मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, पार्टनर और शेयर होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर ओन सोर्सेज. अपने ही सोर्सेज को यूज़ करके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तीन तरह के लोग होते हैं, प्रोप्राइटर, पार्टनर या शेयर होल्डर. दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग. In equity financing, we have discussed that it might be common shareholders और कॉमन स्टॉक भी इसको बोल सकते हैं. कॉमन शेयर होल्डर्स या शेयर्स लिख देते हैं, जगह कम है. एंड देन यू मे हैव प्रेफर्ड स्टॉक या शेयर्स, एंड देन यू हैव रिटेन्ड earning. Common stock shareholders, amount which is invested by common public. Preferred shareholders are those with which special conditions and terms has been decided. Maybe they will not be facing loss, but they will be having a share from the profit. Retained earning, amount of profit which is not distributed among shareholder, it is called retained earning. So this is capital structure including debt and equity financing. Equity financing is further having three different elements: common, preferred, and retained. WACC, now we are associated with. WACC mean weighted average cost of capital. और हमने इस weighted average cost of capital को बहुत पहले से डिस्कस किया हुआ, even in your junior classes in school and in intermediate classes in colleges. You have already discussed weighted average cost of capital, जिसको आप एवरेज भी कह सकते हैं, जिसको आप अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं. और इस तरह की कई टर्म्स हम यूज़ करके इसको फॉलो अप कर चुके हैं. दिस इज़ योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब कैपिटल आपने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया. देयर इज़ नथिंग एल्स एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स, डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग. एंड इक्विटी फाइनेंसिंग फर्दर हैज़ थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स. दिस इज़ योर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो आपको जब भी वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले ये कैपिटल स्ट्रक्चर ही आपने क्रिएट करना है. अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डेट फाइनेंसिंग. इट मे बी पॉसिबल ऑल ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज अरेंज थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग. सारा पैसा उनका अपना है, नथिंग हैज़ बीन टेकन एज अ लोन. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि all the amount is arranged by shareholders, partners, or proprietor. It may be possible all of the amount, all of the capital structure includes debt financing. So hard and fast कोई रूल नहीं है. आप डेट भी ले सकते हैं और आप इक्विटी से भी काम कर सकते हैं. और इवन if you want to have a hybrid system where half of your capital comes from debt, half of your capital comes from equity. और ये भी पॉसिबल है कि यू हैव इशूड योर शेयर्स ओनली टू द कॉमन पब्लिक. नो प्रेफर्ड शेयर्स आर प्रेजेंट, नो रिटेन अर्निंग इज प्रेजेंट, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आप हर क्वेश्चन पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन में खुद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर, यानी क्वेश्चन के अंदर से पढ़ के डिसाइड करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल्स आर प्रेजेंट. बहरहाल आप इसको याद रखने के लिए सबसे पहले डेट ही लिखा करें, फिर कॉमन स्टॉक लिख दिया करें, then preferred stock, and then retained earning. Now here we have already discussed it. Retained earning and common stock are sort of same things. If in any question percentage of common stock is present but capital
is considered as retained earning. So it may be possible you can use percentage of common stock on retained earning, and percentage of retained earning can be used for common stock as well. तो ये आप याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं. अब यहाँ पर अगर तो अमाउंट दी हुई है, जस्ट राइट डाउन इट्स अमाउंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आपने इनके वेट्स भी निकाल सकते हैं और इनकी परसेंटेजेस या कॉस्ट भी निकाल सकते हैं. तो बहरहाल हम वेट्स निकाला करेंगे हमेशा, और फिर इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट वुड बी रिटन इन नेक्स्ट कॉलम. लें जी, ये आपका एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया. बस आप समझ लें कि आप इसको फुल फ्लैज अपने माइंड में रखिएगा. ऐसे ही हर दफ़ा आपने इसको लिखना करना है व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अच्छा, अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ. मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाया एंड वी हैव सीन जस्ट 2 थिंग्स, क्वेश्चन नंबर एंड सेकेंडली वैक. अब मुझे ये भी नहीं पता क्वेश्चन के अंदर आगे क्या है, बट वैक, इफ़ देयर इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू विल सी दिस वर्ड वैक. में जो आज हम काम करेंगे, हम फिक्स करने लगे हैं कि वट एवर इस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट. सो आई विल गिव यू अ फिक्स्ड परफॉर्मर. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू विल हैव अ फिक्स्ड परफॉर्मर. आपको क्या करना है, हमेशा यू विल राइट कैपिटल स्ट्रक्चर ओवर हेयर, और देयर वुड ऑलवेज बी दीज सॉर्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग, डेट और इक्विटी. और डेट इक्विटी के अंदर इक्विटी के जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, और हमेशा आपने ऐसे ही करना है. अब नेक्स्ट इज़ यू विल take the amounts if present. Sometimes amounts of capital structure are present and sometimes you won't be able to have amounts. अब ज़रा क्वेश्चन की शक्ल देखते हैं. तो हमारे क्वेश्चन के अंदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल स्ट्रक्चर है, और सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स हैं, और येस अमाउंट्स आर प्रेजेंट. दिस इज़ 7,50,000, 650,000. दीज आर द अमाउंट्स. अमाउंट्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट फिक्स थिंग इज़ टू राइट डाउन अमाउंट्स ओवर हेयर. नाउ there is a little bit difference over here. You can see first amount is debt. Okay, our first amount is also debt. Second amount over here is common, but second amount over here is preferred stock. But don't even think a tiniest botheration about that. There is no problem at all. You may write common stock over here, you may write common stock over here, but what I have said, we are fixing it ताकि आपको बार बार सोचने की ज़रूरत ना पड़े. Just fix out this sequence. Always write debt on the first line, then common, preferred and retained earning. See how much debt we have. It is $7 lakh. So you are needed to put 7 lakh over here. First amount 7 lakh for debt has been written, and now second amount is preferred stock. यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है. Preferred stock 50,000 है, तो preferred stock थर्ड लाइन के अंदर है. Write down 50,000 over here. And now see what is next, that is common stock 6,50,000. Go to common stock and write down 6,50,000. अच्छा, यहाँ मैंने जैसे पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, इफ़ लेट्स से इन अ क्वेश्चन in practical working it may be possible whole capital is financed through debt, nothing is contributed by themselves. वो let's say organization का structure इतना लोअर लेवल का है, दे आर नॉट हैविंग देयर ओन कैपिटल स्ट्रक्चर, मगर उनके पास आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके पास जो वर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मार्केटेबल प्रोडक्ट थी. तो व्हेन दे हैव प्रोड्यूस्ड और प्रेजेंटेड दिस आइडिया इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो दे हैव बिकम रेडी टू गिव फाइनेंस. वो चाहे डेट की सूरत में. थोड़ा सा हमें इसमें देखने की ज़रूरत है कि डेट फाइनेंसिंग कब होती है और इक्विटी फाइनेंसिंग कब होती है. एक तो साफ रीज़न ये है कि वेन एवर यू डोंट हैव अमाउंट यू विल हैव टू टेक लोन, सो यू विल गो टू द डेट फाइनेंसिंग. इफ़ यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन योर पॉकेट यू विल नॉट बी गोइंग फॉर द डेट, यू विल चूज़ इक्विटी. एक सिंपल सा प्रोसीजर ये भी है. लेकिन लेट्स से आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि जस्ट पुट योर अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम आवर पार्टनर. अगर वो आइडिया में वीकनेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वीकनेस है, तो वो हो सकता है कि इक्विटी फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट ना करें. प्लीज़ आप सोचिए ऐसा क्यों होता है. और वो आपको डेट देने के लिए तैयार हो जाएगा, कर्जा देगा, लेकिन आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा. उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि जो द पर्सन हु इज़ इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस एंड ही इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्ट एज इक्विटी. वाई? बिकॉज ही हैज़ डाउट्स.
whether your product is not strong, your organizational structure is not strong, understanding may be lacking, or the investor has a doubt whether you will be able to get profit or not. So that is why he is not investing as an equity financer. वो डेट क्यों दे रहा है फिर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं है तो हो सकता है कि आपका डेट भी तो ख़राब हो जाए, डूब जाए. लेकिन इन केस ऑफ डेट, इवन अ कंपनी इज़ डिमोलिश्ड, if the company is bankrupt, if the company even disappeared from the planet, even then according to law the owner of the company will have to pay back their debt. लेकिन अगर कंपनी bankrupt हो जाती है तो दे विल नॉट बी लाइबल टू पे टू द कॉमन प्रेफर्ड और रिटेन्ड अर्निंग. जो इक्विटी फाइनेंसिंग में पेमेंट बैक नहीं होती, डेट में हर सूरत में पेमेंट बैक होती है. तो इस वजह से व्हाट विल हैपन व्हेन समबडी इज़ इन्वेस्टिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज डेट, दे हैव द बिलीव दैट दे विल गेट बैक देयर ओरिजिनल अमाउंट विच इज़ डेट. मगर यहाँ मैं एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो फाइनेंसिंग है वो डिफरेंट है. इन केस ऑफ डेट यू विल रिसीव इंटरेस्ट, इन केस ऑफ इक्विटी यू विल रिसीव प्रॉफिट. तो ये वैसे ही प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर डेट फाइनेंसिंग. इस एस्पेक्ट को भी आप सामने रखिएगा. ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम्स यू विल हैव डेट, समटाइम्स यू विल हैव कॉमन स्टॉक, एंड समटाइम्स यू मे नॉट बी हैविंग एनी ऑफ एलिमेंट इन इक्विटी फाइनेंसिंग. सिर्फ डेट से चल सकता है. और इट मे बी पॉसिबल सम ऑर्गेनाइजेशंस आर हैविंग 100% इक्विटी फाइनेंसिंग और किसी से कर्जा नहीं लिया. ईदर दे हैव टेकन अमाउंट फ्रॉम कॉमन, प्रेफर्ड और रिटेन्ड, बट दे हैवन टेकन लोन. तो हो सकता है डेट पूरा का पूरा गायब हो जाए. अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें रिटेन्ड अर्निंग नज़र नहीं आ रही. रिटेन्ड अर्निंग इज़ द अमाउंट which was part of profit and was expected to be distributed among shareholders, but you haven't distributed, it is still in your hand. ऐसा पैसा जो आपने कमाया लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स में, आपने अपने पास ही रखा, उसको आपने रिटेन्ड अर्निंग बोलनी है. अच्छा, मैं अब आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने जो सेकंड कॉलम है ना इसको फिक्स कर देना बस. हर सूरत में हर दफ़ा आपने यहाँ अमाउंट्स लिखनी है. इफ़ अमाउंट्स आर प्रेजेंट, नहीं है अमाउंट्स यहाँ पे तो आप इसको लिख दीजिएगा, लेकिन 0 लगा के ख़त्म कर दीजिएगा. अमाउंट्स आर नॉट अवेलेबल, लेट्स से, इन दैट केस. और कैपिटल स्ट्रक्चर भी फिक्स आपने रखना है और यही एलिमेंट्स इसके साथ लिखने हैं. उसके बाद आपने चाहे क्वेश्चन में कुछ, अभी आपने क्वेश्चन की रीडिंग ही प्रॉपरली नहीं की, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ. वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द थर्ड स्टेप इज़ टू राइट वेट्स. अब वेट्स के लिए आपको क्या करना है, यू विल सम अप ऑल द अमाउंट्स प्रेजेंट इन दिस कॉलम, कैपिटल स्ट्रक्चर की अमाउंट. यानी यहाँ पे पता चलेगा कि टोटल अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, नो मैटर इट इज़ फ्रॉम डेट और इट इज़ फ्रॉम कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड और रिटेन, टोटल यू विल कैलकुलेट ओवर हेयर. और मेरे पास तो एक्सेल है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी सम कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ 7 लाख प्लस 65,000 प्लस 50,000. तो ये आपके पास टोटल आ गया. मुझे चेक करने थे ये 65,000 है या कुछ और है. ये 650,000 है, यानी 6,50,000 है. एक ज़ीरो काम है यहाँ पे, वो हम पुट कर देते हैं. ओके, ये आपके पास टोटल आ गया यहाँ पर $14 lakh. It means how much total amount is invested? 14 lakh. Out of 14 lakh, 7 lakh through debt and remaining amount through equity. हर दफ़ा ही ऐसा हुआ करेगा. अब आप इधर आइए और वेट्स कैलकुलेट करने हैं. यहाँ वेट्स दो तरह से कैलकुलेट हो सकते हैं, एक परसेंटेज की सूरत में, एक टाइम्स की सूरत में. हम इसको टाइम्स की सूरत में करेंगे, मगर मैं बताता हूँ आपको दोनों ही. तो आप टाइम्स की सूरत में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज की सूरत में लिख सकते हैं. फॉर्मूला इज़ द सेम. आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लाख पहले पुट करेंगे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ डेट है, और इसको जस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. सो हेयर यू विल गेट द टाइम्स. अच्छा, टाइम्स मैंने आपको क्या बताया, वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है. जैसे हमने क्या किया, इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये टाइम्स आ गया. अगर इफ़ यू वांट टू राइट इट इन परसेंटेज, तो आपको जस्ट परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो यू मे राइट 50 ओवर है. लेकिन चूँकि आप एक काम अगर टाइम्स में करेंगे तो फिर सारे काम आपको टाइम्स में करने पड़ेंगे. अगर एक काम आपने परसेंटेज में करना है तो फिर अगले सारे काम आपको परसेंटेज में करने हैं. ये अब आपके ऊपर चॉइस है, यू मे राइट 50 और यू मे राइट 0.5. यहाँ अब अगली बात आप समझिएगा, अगर आपने टाइम्स की सूरत में आंसर लिखा, टोटल वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. और अगर आपने परसेंटेज की सूरत में लिखा, दिस टोटल वुड ऑलवेज बी इक्वल टू, कुछ आंसर सोचिए, वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100.
अगर टाइम्स की सूरत में आपने इस आंसर को लिखना है, आंसर वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. अगर परसेंटेज की सूरत में आंसर लिखना है, आंसर वुड बी इक्वल टू 100 ऑलवेज. सो वी हैव कैलकुलेटेड इंडिविजुअल percentage of debt, and now calculate value for common stock. What is the method? Individual amount divided by total amount, and that's all. This is individual percentage, individual weightage of common stock in terms of times, not in terms of percentage. अब यहाँ पर चूँकि एक्सेल है, मुझे तो आसानी है, मैं उसको डायरेक्ट अमाउंट को लिख सकता हूँ, मुझे हैंड रिटन फॉर्म के अंदर यहाँ लिखनी नहीं पड़ेगी. और आपने ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट ऑन पेपर. तो आप जब इतनी बड़ी अमाउंट लिखेंगे तो देर मे बी अ चांस ऑफ मिस प्रेजेंटेशन. जैसे अभी आपने देखा है 1 0 यहाँ पे कम लग गया, तो इट इज़ वेरी कॉमन ह्यूमन एरर. तो अगर यहाँ पर भी वो ऐसा हो सकता है तो आप बेशक राउंड कर दीजिएगा, बट वेन एवर यू विल मेक इट राउंड तो यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ 1 नहीं कभी इक्वल आएगा. अगर आप पूरी अमाउंट लिखेंगे तो ही 1 इक्वल आएगा, और अगर आप राउंड करेंगे तो जो फाइनल आंसर आप निकाल रहे होंगे उसमें भी ट्रबल क्रिएट हो जाएगी. ओके अब आपने ख्याल रखना है कि इसको राउंड कैसे करना है. अगर करना है तो अगर आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, राइट डाउन एज मैनी एज परसेंटेजेस और एज मैनी एज डेसिमल्स यू कैन. नेक्स्ट वी आर विलिंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक. क्या फार्मूला है? इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल. हियर यू हैव गॉट द वेट ऑफ थर्ड वैल्यू. अब मैंने ये तो 1 खुद लिखा हुआ है, मैं इसको मिटाता हूँ और चेक करता हूँ कि वेदर माई परसेंटेज इज़ एक्यूरेट और नॉट. मैंने क्या करना है, इन सारे वेट्स को ऐड करना है. फर्स्ट वेट वाज 0.5, देन 0.4 एंड देन 0.03. सो आई हैव कैलकुलेटेड सम. अगर इसका सम 1 ना आया, इसका मतलब है कि सम ऑफ द परसेंटेज वी हैव रिटन इज़ रॉन्ग. और अगर ये 1 आ गया तो ये परसेंटेजेस ठीक हैं. तो लेट्स चेक इट आउट. अब ये 100% इक्वल टू 1 आया, और आप यहाँ गौर कीजिए, आई हैवंट रिटन 1, आई हैव रिटन सम ऑफ दीज 3 आइटम्स. तो सम करने के बाद आपके पास अगर 1 आ गया तो ठीक है. अब अगर लेट्स से आपने यहाँ राउंड किया होता तो ये कभी 1 नहीं आना था, यहाँ पे कुछ काम हो जाना था. दीज 3 कॉलम्स आर फिक्स्ड फॉर यू. हर दफ़ा हर क्वेश्चन के अंदर वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्स्ट कॉलम कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज अमाउंट इफ अमाउंट्स आर गिवन. इफ नॉट गिवन you are just needed to write zeros over here and weights would be given in the question. इन दोनों में क्या बात समझा रहा हूँ, क्या बात समझनी है हमने? If amount is given you will have to calculate weight. If amount is not given, weights would always be given in the book. तो दोनों जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में weights दिए हुए थे वो हमने डायरेक्ट लिख दिए थे. ओके अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, नेक्स्ट कॉलम दैट वुड बी यूज्ड फॉर योर कॉस्ट. और ये कॉस्ट भी आपने टाइम्स की सूरत में लिखना है. यही मैं बात आपको पहले भी बताई है, रिक्वेस्ट की है कि अगर आपने वेट्स टाइम की सूरत में लिखने हैं तो फिर कॉस्ट भी टाइम्स की सूरत में ही लिखनी है. अगर वेट्स यू हैव डिसाइडेड टू राइट इन परसेंटेज, दैट मीन 50%, 40%, so then cost will also be written in terms of percentage. अब ये बुक में गिवन होगी कॉस्ट. थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें इंडिविजुअल कॉस्ट भी गिवन है. हर एक की अपनी अपनी कॉस्ट इज़ प्रोवाइडेड 5.3, 12 और 16. अब देखें यहाँ पे परसेंटेज गिवन है और हमने तो परसेंटेज नहीं लेनी, हमने टाइम्स लेना है. वो भी हम मेथड अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो 5.3 है. किसका वेट है? डेट का वेट. ये भी ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस को नहीं ख़राब होने देना, वहाँ बुक से पढ़ के लिखना है. और चूँकि हेयर वी हैव फर्स्ट एलिमेंट इज़ डेट एंड इट्स कॉस्ट इज़ 5.3, वही हम पिक करने लगे. 5.3 के साथ परसेंटेज लिखी हुई है. अब आप ये बताइए, जब आपने परसेंटेज निकालनी होती है तो यू डू मल्टीप्लाई इट विद 100. अब परसेंटेज ख़त्म करके टाइम्स की सूरत में लिखना है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे. 5.3 था तो डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए. ये टाइम्स की सूरत में आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ योर डेट 0.053. अच्छा जी, अब इधर आइए. नेक्स्ट एलिमेंट इज़ प्रेफर्ड स्टॉक और उसकी 12% है. प्रेफर्ड स्टॉक देखें आपके पास कहाँ है? 3rd नंबर पर. यहाँ ये 12% था. 12% की परसेंटेज ख़त्म करने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड इट विद 100. हेयर यू विल गेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इन टर्म्स ऑफ टाइम्स 0.12 आई. अच्छा, अब जो नेक्स्ट आपके पास बचा है दैट इज़ प्रेफर्ड स्टॉक, वो सेकेंड लाइन के अंदर है, विच इज़ 12
और वो आपने लिख लिया, प्रेफर्ड स्टॉक 12, ठीक है। और थर्ड आपके पास है कॉमन, और कॉमन के लिए जो परसेंटेज यूज़ हो रही है दैट इज़ 16। अब इसकी भी परसेंटेज ख़त्म करनी है, तो 16% है, तो डिवाइडेड विद 100.16 आ गया। अब इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये टोटल कोई फिक्स टोटल नहीं है, समटाइम्स द परसेंटेज इन ईच क्वेश्चन वुड बी डिफरेंट। तो बस आपका काम यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपके पास ज़ीरो है, क्योंकि आपके पास एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है, उसको आप ज़ीरो लिख दीजिए। ऑल कॉलम्स आर फिक्स्ड एंड एवरी प्रोसीजर इज़ फिक्स्ड। बस ये फ़र्क पड़ रहा है कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके मुताबिक आपने इनको चेंज करते रहना है। अब आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लास्ट कॉलम आप जो करेंगे, इसमें आपने यू विल मल्टीप्लाई वेट्स विद व्हाट कॉस्ट। ये आपके पास वेट्स दिए हुए हैं, ये आपके पास कॉस्ट दी हुई है, वेट और कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर पहला जो एलिमेंट था दैट वाज डेट। डेट का वेट देखें 0.5 था, ये लिखा हुआ है 0.5। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी कॉस्ट से, दैट वाज 0.053। हेयर यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ डेट। इसके कंप्लीट होने पर यू आर नीडेड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर व्हाट, कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का वेट था 0.46 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी कॉस्ट से। अब मुझे क्या आसानी है कि आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस मच लॉन्गर डेसिमल अमाउंट्स ऑन माय कैलकुलेटर। तो मुझे आसानी है, लेकिन आपके लिए आसानी इन अ सेंस नहीं है। आपने कैलकुलेटर पे ये सारी की सारी अमाउंट्स जो लिखी हुई हैं इनको पुटअप करना है। पुटअप करेंगे एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं पुटअप करेंगे राउंड करेंगे तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। ओके, वी हैव गॉट द वैल्यू फॉर कॉमन स्टॉक। मुझे कोई मसला नहीं है कि यहाँ पर क्या अमाउंट आ रही हैं, क्योंकि मैं पूरा पूरा डेसिमल पिकअप कर रहा हूँ, जितनी भी आ रही हैं ऑटोमेटिकली उधर ट्रांसफ़र हो रही हैं। Now next procedure is to calculate value for preferred stock. Its weight was 0.03. We are going to multiply it with cost, that was 12%, और जिसको टाइम्स की सूरत में लिखा हुआ है। यूँ आपने इसकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट किया, सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, मगर जो प्रेफर लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने जस्ट यू आर नीडेड टू गेट टोटल। मैं अगर इसको एक्सेल को बोलूँगा इसका सम करे तो वो खुद ब खुद सारी अमाउंट्स का सम कर देगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ तो थोड़ा अब वही स्टेप्स टेक ओवर करूँ जो आप कैलकुलेटर पे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ राइट डाउन 0.02, देन ऐड 0.07, ऐड 0.004 एंड हेयर यू हैव गॉट योर टोटल वैल्यू एंड दिस इज़ what you have done is weighted average cost of capital। अब इसको मैं लिखना चाह रहा था ज़रा नीचे, अच्छा यहाँ करके हम और डालते हैं, पहले ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये टाइम्स की सूरत में निकला है, आंसर आपका निकल आया है, बस आपने इससे आगे नहीं चलना, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको प्रॉपर परसेंटेज की सूरत में लिखना, इट इज़ मोर प्रेजेंटेबल। तो आपने जो आंसर निकाला है वो किस चीज़ का आंसर है, ये दिस इज़ कॉल्ड वेटेड एवरेज या वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि वैक है, और उसका आंसर आपने अब परसेंटेज की सूरत में लिखना है। और वो कैसे, ये टाइम्स है, टाइम्स को परसेंटेज में बनाने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई द आंसर विद 100। अब आप ये कैसे याद रखेंगे, व्हेन यू आर विलिंग टू हैव अमाउंट इन टाइम्स, उसको डिवाइड बाय 100 कर दें, डिवाइड, बट आई एम यूजिंग द वर्ड डिवाइड। और जब आपने उसको परसेंटेज की सूरत में लिखना है, मल्टीप्लाई इट विद 100। अब चूँकि आपने इसको परसेंटेज में लिखना था तो यू हैव मल्टीप्लाइड, परसेंटेज मल्टीप्लाई टाइम्स डिवाइड। सो हेयर यू हैव गॉट योर आंसर 10.507। अब आप इसको बुक से भी कंपेयर कर लीजिएगा, अगर बुक में ये प्लस माइनस है तो उसको निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अब हमने कोई एक डेसिमल भी नहीं छोड़ा और हमने एक्यूरेसी के साथ सारे डेसिमल यूज़ करे हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो 10.50 के आगे कुछ लिखा हुआ है और, तो आप उसको निगलेक्ट करें। मेन अमाउंट आपकी ठीक होगी 10, 5 भी ठीक होगा, लेकिन जो नेक्स्ट फिगर्स हैं उनमें अगर बुक वाले ने पूरे पूरे डेसिमल यूज़ किए हैं तो पूरा पूरा आंसर यही वाला होगा, अगर वहाँ डेसिमल कम यूज़ किए हैं तो फ्रैक्शनल डिफरेंस होगा। So this way you have calculated your WACC
और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और ये कॉलम फिक्स कर लीजिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट, वेट्स, कॉस्ट, और वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। दीज आर फिक्स्ड कॉलम्स for calculation of WACC, and then sum will be arrived, and this sum you will multiply it with 100, you will get WACC 10.50। ये क्या शो कर रहा है देखें, आपकी परसेंटेज किसी की 50% थी, और ये समझना यहाँ पर बहुत आसान है कि टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 14 लाख एंड आउट ऑफ दिस 14 लाख यू हैव 7 लाख फॉर डेट। आधा कर्जा, आधा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर्जे से आई हुई है, तो इसका मतलब है 50%, ये वही 50% हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। Hopefully you people have understood. This was all about for question number 13. Question number 13 is completed. If there is any query, if there is anything you want to understand, you may comment over here and I will surely try to answer instantly. अगर देर भी हुई तो I will answer, और अगर you can message, you can text, or you can meet directly, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। ओके, दिस वाज 9.13 and we will surely meet in future for the solution of any other question inshallah. Up till then, please take care of yourself and I'm requesting you to please pray for me as well. For the time being, thank you very much. Allah Hafiz.